नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तिब्बी मैदान में जुमा को तेलंगाना में एक नया रिकॉर्ड हुआ दर्ज। सीएम केसीआर ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक ही दिन आज क्लासेस का किया आगाज़। करीमनगर के कुत्तापल्ली मंडल में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब को कवरेज करने से एक रिपोर्टर को रोका गया। वज़ीर जी कमलाकर के पीए और पुलिस की हरकत। अपोजिशन इंडिया के इत्तेहाद के कायदीन का बड़ा फैसला। सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और नफरत का माहौल पैदा करने वाले चैनल्स के मुबाहिसे में हिस्सा न लेने का किया ऐलान। एंकर्स की लिस्ट भी की जारी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को इस महीने की 26 तारीख तक समन जारी न करने की ईडी को दी हिदायत। नीट इम्तिहान लिखने के लिए आई हामिला खातून की इम्तिहानी मरकज़ में मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से एक 6 माह के बच्चे का कर लिया गया अगवा। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के तिब्बी मैदान में जुमा को तेलंगाना में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक ही दिन क्लासेस का आगाज़ हुआ। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालापल्ली, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना सिरसिला, विकाराबाद और जनगांव अजला में रियासती हुकूमत के ज़रिए क़ायम करदा मेडिकल कॉलेजों की क्लासों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत टी हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ साथ कई MLAs, MPs और महकमे सेहत के अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। అటువంటి తెలంగాణలో ఈ రోజు ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మొత్తం 34 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటట్టుగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదించి తీర్మానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాలసీ అంతా అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ పాలసీ. అంటే ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ మనకు ఉండబోతా ఉంది. ఈ సంవత్సరంతో దాదాపుగా 24 కాలేజీల వరకు మనం చేరుకున్నాం. కొత్త కాలేజీలు గతంలో మనకి 5 మెడికల్ కాలేజీలు ఉంటే ఈరోజు ఆ సంఖ్య 26కు మనం చేరుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరొక 8 కళాశాలలు నూతనంగా ప్రారంభం కాబోతా ఉన్నాయి. దానికి కేబినెట్ ఆల్రెడీ ఆమోదం ఇచ్చింది. ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వాటి కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాం. దీనిలో చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే 2850 మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే కలిగి ఉన్న తెలంగాణలో 2014లో ఈరోజు 8515 మెడికల్ సీట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరొక విశేషం ఏంటంటే వైద్యశాఖ మంత్రి గారికి, వైద్యశాఖ కార్యదర్శి గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 85% సీట్లు ఖచ్చితంగా నీటి బోను మిగిలినంత తెలంగాణ బిడ్డలకే దక్కాలని చెప్పి ఏదైతే వారు జీవో విడుదల చేసినారో దాని మీద న్యాయ వివాదం చెలరేగినా అక్కడ కూడా చాలా పటిష్టంగా పోరాటం చేసి మంత్రి గారు, వైద్యశాఖ సిబ్బంది అంతా కూడా హైకోర్టులో కూడా విజయం సాధించాం. మనం గొప్ప విజయం అది. అంటే రాబోయే సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకునే 8 కాలేజీలు, ఇప్పటివరకే స్టార్ట్ అయినటువంటి 26 కాలేజీలు మొత్తం కలిపి, ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి స్థాయికి మనం ఎదుగుతా ఉన్నాం. ఈ 10,000 డాక్టర్లు ఉత్పత్తి కావడం అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈరోజు ఒక మిత్రులు సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. నాకు ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చూపించారు వారికి వచ్చిన సందేశం నుంచి. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనిషికి బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే, రోగనిరోధక శక్తి ఉండాలంటే తెల్ల కణాలు రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో ఈ తెలంగాణ ప్రొడ్యూస్ చేయబోయేటువంటి తెల్లకోటు డాక్టర్లు రాష్ట్రానికే కాదు దేశ భద్రతకు కూడా పనిచేస్తారు, దేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థను కాపాడడానికి అనే దానిలో నిర్వివాదాంశం ఇవరకు సందేహం అవసరం లేదు. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ కాలేజీలు ఒకేసారి 9 కాలేజీల్లో తరగతి గదులు ప్రారంభిస్తూ ఈరోజు కాలేజీలు ప్రారంభం చేస్తున్న సందర్భంగా వారిని ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ज़िले करीमनगर के कुत्तापल्ली मंडल में मेडिकल कॉलेज का वज़ीर-ए-आला केसीआर के हाथों डिजिटल इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में सहाफ़ी को इफ्तिताई तकरीब की न्यूज़ कवरेज करने से मना किया गया। इस इफ्तिताई तकरीब में ज़िला कलेक्टर करीमनगर गोपी, रियासती वज़ीर गंगोला कमलाकर, बी विनोद कुमार और मेयर सुनील के अलावा दीगर ने शिरकत की। मज़ीद ये कि इस इफ्तिताई तकरीब की रिपोर्टिंग करने से मुकामी MLA गंगोला कमलाकर के PA और इनके सिक्योरिटी कांस्टेबल ने रोक रखा और बहस व मुबाहिसा करने लगे और कहा कि मीडिया को इफ्तिताई तकरीब में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है।
जबकि सहाफ़ती शनाख्ती कार्ड जो कि हुकूमत से जारी शुदा मुसल्लिमा एक्रेडिटेशन होता है, इसको बताने पर भी वो इस तकरीब की तफसीली रिपोर्ट लेने से रोके रखा। जबकि सहाफ़ी हुकूमत के फलाह बहबूद और अवामी मसाइल और हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक बज़रिए पहुँचाता है। मज़ीद ये कि इस इब्तिदाई तकरीब में सहाफ़ियों को बैठने के लिए नशिस्तों का इंतज़ाम भी नहीं किया गया था। इस मेडिकल कॉलेज की इब्तिदाई तकरीब के मौके पर सैकड़ों तादाद में दीगर कॉलेज के तलबा शरीक रहे। BRS MLC के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने कविता को इस महीने की 26 तारीख तक समन जारी ना करने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिदायत दी है। कविता की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ED के एडवोकेट से रद्दअमल जाहिर करने की ख्वाहिश की, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस पस मंज़र में 26 सितंबर तक समन जारी ना करने की अदालत ने हिदायत दी। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक बार फिर नोटिस जारी की गई थी और आज इन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह है कि तहक़ीक़ाती इदारों की जानिब से ख़वातीन से इनके घर में ही पूछताछ करने और इन कवायद पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए कविता की जानिब से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्ज़ी जो ज़ेर समात है। कविता अब तक 3 मरतबा ED के रूबरू हाजिर हो चुकी हैं। इनके ख़िलाफ़ अभी तक किसी भी तरह के शवाहिद वज़्न नहीं किए गए और एक मरतबा फिर इन्हें नोटिस जारी की गई है। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से एक 6 माह के बच्चे का अगवा हो गया। बताया जाता है कि गंडीपेट इलाके के रहने वाले सलमान खान अपनी बीवी के साथ 4 साल बड़े लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाए थे। इनका छोटा बेटा 6 माह के फैसल खान को एक नामालूम खातून उस वक्त लेकर फरार हो गई जब बच्चे की मां खाना लेने के लिए अस्पताल की पहली मंजिल से नीचे गई थी। मां के वापस आने के बाद खातून और बच्चा दोनों गायब थे। ये वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। इसी दौरान बच्चे की मां ने बताया कि वो फैसल खान को दूध पिला रही थी कि एक नामालूम खातून जो इनके बाजू बैठ गई। खातून ने बताया कि इसका लड़का भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बच्चे के साथ इसका शौहर है। वार्ड में 2 अफराद को रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ बैठने आई है। खातून की बात पर भरोसा करते हुए फैसल की माँ बच्चे को इसके हवाले करते हुए खाना लाने के लिए नीचे गई और वापस आने पर बच्चा और खातून दोनों लापता थे। लड़के के वालिद सलमान खान ने नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस नामालूम खातून की तलाश में है और अस्पताल के CCTV कैमरों की जांच कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैं जो है सो मेरा बच्चा 6 महीने का बच्चा जो है सो नीलोफर हॉस्पिटल में से फर्स्ट फ्लोर वार्ड इमरजेंसी वार्ड में से चोरी हो गया। उनके बड़े भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था तो उनको लेके आए थे। उनके मवालदा भी संगाती थे। जस्ट खाना खाने के लिए बाहर खाना लेने के लिए बाहर निकले उन्होंने, उतनी देर में मेरा बच्चा चोरी हो गया। एक हिंदू लेडी थी कहते, ब्राउन कलर की नाइटी पे और येलो कलर के स्कार्फ पे बट्टू लगा लेके वो जो है ना बात कर रही थी कहते, वो भी पेशेंट ही है कहते, कुछ बात कर रही थी कहते। हमारे घर वाले खाली खाना लिए तो उतनी देर में वो बच्चे को ले लेके चले गई। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मेरी ये अपील है कि पुलिस वालों से आप लोग सर्च करें। वो लेडी कब से आपके साथ थी आपके वार्ड में? 10 मिनट ऐसा कुछ बात करी कहते। वो लेडी कितनी देर से थी वो तो मेरे को नहीं मालूम है। वो ऑलरेडी हमारे घर वालों से कांटेक्ट में थी, उससे बात करे कहते घर वालों से, तो उसको बात भी करना सही नहीं आ रहा कहते, हिंदी में तेलुगु में ही बात कर रही कहते। वो पूछ रही भी कहते ये बच्चे का इलाज चल रहा है या किसी और का चल रहा है। वो तो बड़े बच्चे का इलाज चल रहा बोले तो वो ऑलरेडी लेडी क्या करी कहते, अच्छा ठीक है वैसा ऐसा बोल के जो है तो बात करने के बाद में हमारे घर वाले जस्ट खाना लेने बाजू निकलते कि जो है तो वो हमारे बच्चे को ले लेके चले गई। ब्राउन कलर की नाइटी पे है और येलो कलर के स्कार्फ पे है वो लेडी। के बच्चे की फ़ोटो बताओ। फ़ोटो 6 महीने का बच्चा है, इसका नाम फैसल है, फैसल खान है इनका नाम। आप कंप्लेन करें इसके बाद? हाँ, नामपल्ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा। ऑलरेडी वो लोग सर्वरिंग पे है, राउंडिंग पे है। हॉस्पिटल के CCTV में औरत वो कैद हुई लेके गई? नहीं, वार्ड में के कैमरे नहीं चल रहे करते, आउटडोर के कैमरे चेक करे, अभी कैद नहीं हुई, अभी नहीं मालूम हुआ, अभी सर्च में लगे हुए हैं वो लोग। ये कितने बजे वाक़या पेश आया? 6:30 बजे के टाइम पे हुआ ये मगरिब के टाइम? मगरिब के टाइम पे हुआ। पुलिस आई फिर हॉस्पिटल? हाँ आए, सिर्फ जने चेक करके गए हुए हैं। मेरी यही अपील है कि मेरा बच्चा सही सलामत मिल गया तो बस से मेरे को। अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया है कि वो ऐसे TV एंकर्स या सहाफ़ियों के प्रोग्राम में अपने कायदीन को नहीं भेजेंगे
जो सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का काम करते हैं और नफ़रत का माहौल पैदा करते हैं। इत्तेहाद इंडिया की तरफ से ऐसे टीवी एंकर्स की फहरिस्त जारी की गई है जिसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे मशहूर नाम शामिल है। इत्तेहाद इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 13 सितंबर को एनसीपी सरबरा शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ था। इस इजलास के बाद ही कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया था कि इजलास में इस बात पर इत्तेफाक कायम हुआ है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स के कुछ एंकर के शो में इंडिया इत्तेहाद का कोई भी लीडर शामिल नहीं होगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने किसी भी एंकर का नाम जाहिर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि एंकर के नाम पर फैसला ज़ेली ग्रुप करेगा जिसे मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। आज इन एंकर्स की फहरिस्त सामने आई है जिनके प्रोग्राम में इंडिया इत्तेहाद के कायदीन शामिल नहीं होंगे। इनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, जी सावंत, नविका कुमार, प्रचार प्राची, रुपिका लियाकत, शिफ अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा शामिल है। शहर हैदराबाद में खातून ऑटो में सोने के जेवरात भूल गई थी, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन्हें वो जेवर वापस दिलवा दिया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के मारुति नगर की रहने वाली एक खातून अपनी वालदा के हमरा ऑटो में इमली बन बस डिपो पहुंची। वो दोनों अंबरपेट से ऑटो में सवार हुए थे। बस डिपो के पास ऑटो से उतरने के बाद वो 16 तोले वजनी तलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग ऑटो में ही भूल कर उतर गए। बस डिपो में अंदर जाकर देखने पर इन्हें पता चला कि बैग गायब है और उन्होंने फौरी मीर चौक पुलिस से शिकायत की और पुलिस को खातून ने बताया कि वो बैग ऑटो में ही भूल कर उतर गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो का पता चलाते हुए जेवरात का बैग खातून के हवाले कर दिया। पुलिस की बरवक्त चौकसी के नतीजे में इस खातून को अपना खोया हुआ जेवर वापस मिल गया, जिस पर उन्होंने पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट लिखने के लिए आने वाली हामिला खातून की इम्तिहानी मरकज़ पर ही मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू के इस्नापुर सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी हामिला खातून जो टेट इम्तिहान लिखने गई थी, वक्त पर सेंटर पहुंचने की जल्दी में वो दौड़ती हुई इम्तिहानी मरकज़ के कमरे में पहुंची, जिसकी वजह से खातून का बीपी बढ़ गया और राधिका इम्तिहान के कमरे में गिर गई। राधिका को इसके शोहर ने पटनचेरू के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि राधिका की मौत पहले ही हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की उबरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस संजीव और SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि समाअत की तारीख का फैसला आज जुमा या किसी और दिन किया जाएगा। सिसोदिया की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील ने इल्तिजा की कि अगर मामला 4 अक्टूबर को लिया जाता है तो इससे समाअत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों की जानिब से पेश हुए। सिसोदिया ने अपनी बीमार बीवी सीमा से मिलने और इनकी बिगड़ती हुई सेहत की हालत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए उबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की है। अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी ज़मानत पर कोई हिदायत देने से इनकार कर दिया था। भैंसा में हज़रत शेख खुदावन शाह वली अलमारूफ खुंचा वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स व संदल के मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने BRS कायदीन शेख उमर कुरैशी के मकान पहुँचे, जहाँ नज़ीर कुरैशी, रहीम कुरैशी, यासीन कुरैशी, आसिफ कुरैशी, मुबीन कुरैशी, खदीर कुरैशी, साजिद कुरैशी व दिगर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के अलावा BRS कायदीन जिनमें अब्दुल वासिर रसूल, P कृष्णा, अब्दुल मजीद चौधरी, कासिम भंडारी, अज़ीज़ कुरैशी, रसूल कुरैशी व दिगर की शालपोशी व गुलपोशी की गई और मुख्तलिफ़ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर सैयद जावेद, सैयद आतिफ़, मोहम्मद महबूब और दीगर BRS कायदीन के अलावा खुरैश बरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले कुमरम भी मासिफाबाद कागज़ नगर BRS कायदीन की जानिब से नीट इम्तिहान लिखने वाले तलबा और इनके साथ आने वाले सरपरस्तों को ज़िला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा, कागज़ नगर वाइस चेयरमैन रचकुंडा गिरीश ने मौस की तकसीम की। इस मौके पर काउंसलर्स और BRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
तिब्बी मैदान में जुमा को तेलंगाना में एक नया रिकॉर्ड हुआ दर्ज। सीएम केसीआर ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक ही दिन आज क्लासेस का किया आगाज। करीमनगर के कुत्तापल्ली मंडल में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब को कवरेज करने से एक रिपोर्टर को रोका गया। वजीर जी कमलाकर के पीए और पुलिस की हरकत। अपोजिशन इंडिया के इत्तेहाद के कायदीन का बड़ा फैसला। सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और नफरत का माहौल पैदा करने वाले चैनल्स के मुबाहिसे में हिस्सा न लेने का किया ऐलान। एंकर्स की लिस्ट भी की जारी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को इस महीने की 26 तारीख तक समन जारी न करने की ईडी को दी हिदायत। नीट इम्तिहान लिखने के लिए आई हामिला खातून की इम्तिहानी मरकज़ में मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से एक 6 माह के बच्चे का कर लिया गया अगवा। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।